بعد آپ نے ان 22-23 کروڑ لوگوں کو صحت کی سہولیات دی جائیں گی. آپ جہاں کی ایمرجنسی میں چلے جائیں, سول کی ایمرجنسی میں چلے جائیں, ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے. تقریباً 7-8 ہزار لوگ ہمارے اتر میں ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے لوگ زیادہ سے زیادہ کر دیے مگر آپ کے پاس سہولیات نہیں ہیں ان کو علاج کرنے کی, ایجوکیٹ کرنے کی, ایجوکیشن دینے کی. ایسے لگے گا آپ کو کہ جیسے آپ کسی مارکیٹ میں رہے ہیں یا ہاسپٹل میں گئے. یو نیڈ لاٹ آف بجٹ, آپ کو بہت پیسے چاہیے ہاسپٹل بنانے کے لیے. اس کا ڈائریکٹلی ریلیشن شپ ہے کہ آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے, آپ کو ہیلتھ کی سہولیات زیادہ دینی پڑے گی. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایجوکیشن. 22-23 کروڑ لوگوں کو آپ نے روڈ پہ تو نہیں چھوڑ دینا, آپ کو اسکولس بنانے ہیں. اگین اگر ہم اپنا لٹریسی ریٹ دیکھیں تو انفارچونیٹلی دنیا سے تو کیا ساؤتھ ایشیا سے بھی پیچھے ہیں. اس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ بھی اثر آ رہا ہے. ہزاروں بچے مر جاتے ہیں 5 سال سے پہلے. تقریباً ہمارا میٹرنل مارٹرلی ریٹ بھی ریجن میں سب سے زیادہ ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی پاپولیشن زیادہ ہے, آپ سہولیات نہیں دے پا رہے ہو. اب جب فارغ لوگ ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ یا تو وہ ایسے اسکول سسٹم میں جاتے ہیں جہاں پہ دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. میں ایک آخری بات کروں گا. 71 میں جو بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا, بفور 71 ان کی پاپولیشن ہم سے زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی پاپولیشن 16 کروڑ ہے اور ہم 30-24 کروڑ پہ آ گئے ہیں. ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے. پاپولیشن کم ہے مگر ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. تقریباً $50 ارب کی ان کی ایکسپورٹ ہے اور ہماری ایکسپورٹ ہے $30-31 ارب کی. جو 1 ٹکا گالی سمجھا جاتا تھا وہ ٹکا $96 ہے اور آپ کی کرنسی 220-30 کی ہو گئی ہے. آپ وہاں کے ہاسپٹل میں جائیں گے آپ کو ڈائریا کے کیسز نہیں ملیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کے اوپر انویسٹ کیا ہے, ان کو سہولت دی ہے, صحت کی, ایجوکیشن کی. آج ہمارا پاسپورٹ دنیا میں 4 جو ورسٹ ترین پاسپورٹ ہیں اس میں ہے, افغانستان کے ساتھ, صومالیہ کے ساتھ, سیریا کے ساتھ. اور ہماری گڈول بھی دنیا میں اتنی اچھی نہیں ہے. بنگلہ دیش کی گڈول بھی دنیا میں اچھی ہے, لوگ اس کی زیادہ باتیں نہیں مانتے ہیں اور زیادہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. میرے سینئر اسپیکر موجود ہیں یہاں پہ, وہ فردر آپ کو گائیڈ کریں گے, بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ تھے ڈاکٹر یحییٰ تنیو, ڈپٹی ڈائریکٹر JPMC, جنہوں نے کہا کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اس لیے ہم سہولتیں نہیں دے پا رہے. آج ہم نے جو سلیکشن کی ہے کہ آپ کے آگے, آپ کے پاس یہ جو ہم نے پروگرام کرایا ہے, تو نرس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اپنی سگی ماں کے پاس بھی بچہ اس کے بعد آتا ہے, پیدا ہونے کے بعد پہلے نرس کے ہاتھوں میں. یو آر دا موسٹ ریسپیکٹیبل. اور جو نرس پاپولیشن پلاننگ میں کنٹرول بھی ادا کرتی ہے بہت جگہ, کیونکہ آپ مستقبل میں کئی جگہوں پہ ہوں گی, آپ پورے پاکستان میں ہوں گی, کہیں کوئی کہاں جیسے آج حاضرہ سے میڈم آپ کے پاس پڑھا رہی ہیں تو انہوں نے بھی ایک سفر طے کیا ہوگا. تو یہ جو پاپولیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے, آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہمارے حکمران کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہے, مطلب اتنا اس کو لائٹ لے رہے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں, فوجی کے زمانے میں کام تھوڑا بہت یہاں زیادہ ہوا تھا, جو بھٹو کے زمانے میں کم ہوتا اور ضیاءالحق کے زمانے میں بالکل زمین دوست ہو گیا. پہلے ہم چھوٹے تھے تو ہم جب روڈوں پہ گزرتے تھے تو بورڈ لگے ہوتے تھے 2 بچے ہی اچھے. آج ایک بھی بورڈ نہیں آپ کو, بلکہ تو نرسنگ اسکول کا بورڈ نہیں لگا ہوا آپ کا.
تو بورڈ ہی نہیں نظر آتے فیملی پلاننگ. ہم کتنی تیزی کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم پوری دنیا سے پیچھے نہیں ہیں, ہم ساؤتھ ایشیا سے ہی پیچھے ہیں. کیونکہ یہ قصور آپ کا نہیں ہے, یہ قصور میرا نہیں ہے, یہ ڈاکٹر یحییٰ کا قصور نہیں ہے, نہ میڈم کا ہے, یہ ہمارے پالیسی بنانے والوں کا ہے. بینگ اے ڈاکٹر میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہو, فزیکلی فٹ ہو, ہاتھ بھی ثابت ہو, پاؤں بھی ثابت ہو, آنکھیں بھی ثابت, لیکن مینٹلی ریٹارڈیڈ ہو تو وہ کسی کام کرے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ہماری جو کنٹرولنگ سسٹم ہے, دیٹ از دا فیلیور آف دا کنٹرولنگ سسٹم. یہ وہاں کا فیلیور ہے, یہ ہمارا فیلیور نہیں ہے. کیونکہ ساری دنیا میں جب تک پنشمنٹ نہیں ہوتی, پالیسیاں دنیا کے ملک بناتے ہیں. چائنا نے خود پالیسی بنائی کہ کتنے بچے پیدا کرنے ہیں, اور انہوں نے کنٹرول کیا. ہم نے کوئی پالیسی نہیں بناتے, ہم ڈرے ہوئے ہیں. کل میرا ایک رینجرز کا دوست ہے, میں نے ان کو بولا کہ آپ بھی آئیں یہاں اسپیچ کریں, اور یہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو انہوں نے بولا یہ ایشو ہمارے لوگ, گورنمنٹ مولویوں سے ڈرتی ہے. میں نے کہا مولویوں سے ڈرتے ہوئے عتیق رضوی نے تو بل پاس کروا لیا کہ پہلے تو یہاں پاکستان میں ہوتا تھا کہ گردہ بھی نہیں دینا ہے ڈونیشن, آنکھ بھی نہیں دینی ہے ڈونیشن, لیکن انہوں نے کوشش کی, مسلسل لگے رہے. تو ایک دن آج ہے جو وہاں پرمیشن مل گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ کوئی بھی ڈونیٹ کر سکتا ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے پاپولیشن کو. اور کیونکہ ہمارے ملک میں پریونشن پہ کام نہیں ہوتا ہے. اتنے جو آپ کو جنا ہاسپٹل جاتے ہیں, آپ کو آئی سی یو نہیں ملتا ہے بیڈ, جنرل بیڈ نہیں ملتا ہے خالی. ہمیں فون کرتے ہیں دوست کے, ان کو سفارش کرو کہ بیڈ دلواؤ. یہ اس لیے کہ ہم پریونشن پہ کام نہیں کرتے. ابھی میں دعوت دوں گا ہماری بہت ہی اہم ڈاکٹر سونیا, شی از اے گائنوکولوجسٹ, شی از دا پریزیڈنٹ PMA کراچی. ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور پاپولیشن پہ بات کریں. بہت شکریہ, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور پانی کی ڈگری مہتا, ڈاکٹر کرا, ڈاکٹر تجربہ کہ آپ سب لوگ آئے اور اس پروگرام کو رونق بخشی. میں گائنیکالوجسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی. جیسے ڈاکٹر جیپال نے کہا کہ میرا خیال ہے گائنیکالوجسٹ آج کل اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ وہ صرف بیماریوں کو اور ڈلیوریز کو ڈیل کرتی ہیں. کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم ٹائم نکال کے تھوڑا سا فیملی پلاننگ پہ بات کرتے ہیں عورت سے. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ایک عورت جب پریگنٹ ہوتی ہے جبھی ہسپتال آتی ہے, ٹھیک ہے. تو PPIUCD جو چلا تھا پروجیکٹ وہ ایک بہت افیکٹو تھا, حالانکہ اس میں ایکسپلشن ریٹ بھی زیادہ تھا, لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب ایک عورت آئی ہے ہم اس کے اینٹیریٹر کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کو ہم نے کاؤنسل کیا ہے, یہ عورت کانٹرسیپٹیو کروا کے پھر ہی کر جائے. اس میں مجھے آپ سب نرسنگ اسٹاف کی بہت اہمیت ہے. آپ لوگ زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں بنسبت گائنیکالوجسٹ کے, ٹھیک ہے, کیونکہ موٹیویشن کی ضرورت ہے. ہم جگہ جگہ یہ پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم میکسیمم لوگوں کو اپنی اس کیمپین میں انوالو کرنا چاہتے ہیں, جو فیملی پلاننگ میں ہماری مدد کریں. اب آپ دیکھیں ہمارا جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 186 ہے پر 100,000 لائف برتھ, اور فرٹیلٹی ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. جو ہمارا پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے ہے, اگر ہم اس کو 2012-13 سے اور جو اب والا ہوا ہے 17 والا, اس میں پہلے 3.6 چلڈرن تھے, اور رورل میں 3.9 ہے, اور اب اربن میں 2.9 ہے. یعنی کہ ایجوکیشن ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے. ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے وہ یہ چاہے گی کہ بچوں میں وقفہ ہو, اور بیسک سے بچے ہوں. آج کل عورتیں پڑھ زیادہ رہی ہیں تو ان کی پہلے زمانے میں جلدی شادیاں ہوتی تھیں, آج کل وہ کانسیپٹ بھی تھوڑا چینج ہو رہا ہے. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر جیپال نے کہا کہ پہلے بورڈ نظر آتے تھے, اب بورڈ نظر نہیں آتے, تو لوگ جو ہے وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں. مگر کیوں کتراتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. When you will get married, you will have children.
करते, सबसे अच्छा तरीका तो ये है ना कि आप मीडिया के थ्रू अप्रोच करें। जो मर्द और औरत दोनों देखते हैं, तो हम पॉपुलेशन पे क्यों नहीं ऐड दे सकते? उन लोगों के लिए एक इनडायरेक्ट वे में हम क्यों नहीं बता सकते कि देखें पाकिस्तान के वसाइल महदूद हैं, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर तुनियो ने कहा कि बॉम्ब टिक कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम आज से वर्क नहीं करेंगे तो जो हमारे पहले हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में फेल हुए हैं, और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पॉपुलेशन की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि हर एक को पॉवर्टी लाइन से अबव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जेंडर इक्वालिटी की बात है, वो जब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है। और कितने लोग हैं हमारे जो अगर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है तो अबॉर्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। हम खुद नहीं करते लेकिन हम एटलीस्ट उनको मैरिज ट्रूप, छोटा घराना, इस टाइप की जगहों पे भेज देते हैं, और वो लोग भी 12 वीक्स के अंदर अंदर करते हैं। हम इसलिए उनको भेजते हैं कि हम कहते हैं बजाय इसके कि औरत किसी गलत जगह जाए, अगर इसने सोच लिया है कि ये अपना अबॉर्शन करवाएगी तो ये करवाएगी, और किसी गलत जगह जाए और उसकी जान को ख़तरा हो तो इससे बेहतर होता है आप उन्हें ठीक जगह पे रेफ़र करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वही पॉलिसी मेकर्स की बात आ जाती है। फिर टीन एज प्रेगनेंसी, 8% हमारी एडोलेसेंट लड़कियां ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब चाइल्ड मैरिज के ख़िलाफ़ तो बहुत बात होती है, तो यंग लड़कियां जो कि खुद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जिनके पेल्विस डेवलप नहीं है, जिनकी हड्डियां भी मजबूत नहीं हैं, उनकी सोच भी अभी मैच्योर नहीं हुई, उनकी शादियां करना, उनकी प्रेगनेंसीज वो कहाँ सोच पाएंगी कि हम वो करें। फिर औरतों को इतनी वो नहीं है। मैंने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसमें मैंने औरतों से ये पूछा कि भाई तुम अपनी फैमिली प्लानिंग का इरादा खुद रखती हो, तो वो हमेशा ये जवाब आता था मेजॉरिटी से कि मैं घर जाके अपने शौहर से डिस्कस करूँगी या मैं अपनी सास से पूछूंगी। मतलब उस औरत को ये राइट नहीं है कि वो ये फ़ैसला खुद ले ले कि मैं एहतियात चाहती हूँ, मैं वक्फा चाहती हूँ, तो मैं ये फ़ैसला खुद करूँ कि डॉक्टर साहब अगर मुझे कोई चीज़ एडवाइस कर रही है तो वो मैं खुद करूँ। वो ये पूछते थे। फिर पूछा गया उनसे कि भाई आपको पता है कि मेल में भी विजेक्टमी होती है, जैसे औरतों की स्टेरिलाइजेशन होती है। तो सिवाय 2-3% के किसी को पता ही नहीं था कि मेल में विजेक्टमी करके आप, ये भी एक तरीक़ा है मतलब फैमिली प्लानिंग का कि आप मर्दों की नसबंदी करें औरतों के बजाय। तो ये हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो आप देखें, अगर हम फीमेल स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं तो उनकी करते हैं जो औरतें ऑलरेडी डैमेज कर चुकी होती हैं, जिनके 3-4 बच्चे, 3 सिजेरियन हो गए, 4 हो गए, उसके बाद आपने किसी की ट्यूबल लाइगेशन कर दी, तो उस औरत ने तो वो डैमेज कर दिया, उसके बाद स्टेरिलाइजेशन करना कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न मेथड्स यूज़ नहीं होते। जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग कॉन्डम्स पे रिलाई करते हैं जिसका फेलियर रेट 8% है, या फिर विड्रॉल मेथड पे करते हैं। विड्रॉल मेथड से भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं। मतलब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मैं बहुत हैरान हुई सोच के कि मेरी एक डॉक्टर सिजेरियन कर रही थी। मैंने उससे कहा अब इसका ये तीसरा सीज़र है या चौथा, तो मैं ऐसा करो अब इसकी ट्यूबल लाइगेशन कर दो। तो उसने मुझसे कहा कि मैडम मैं ट्यूबल लाइगेशन नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों? तो उसका मतलब ये था कि मैं रिलीजियसली, मेरे बिलीव्स ऐसे हैं कि मैं इसकी ट्यूबल लाइगेशन नहीं करूँगी। तो मैंने उससे कहा ठीक है तुम हट जाओ, ट्यूबल लाइगेशन मैं करूँगी, क्योंकि अगली दफ़ा ये औरत रप्चर्ड यूट्रस के साथ आएगी और ये मर जाएगी अगर इसकी दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो, या चौथी 5वीं जब भी हुई तो थोड़ा सोच का भी फ़र्क है। तो आई थिंक कहीं भी कुरान में, रिलीजन में ये नहीं लिखा हुआ कि आप वक्फा ना करें, आप स्पेसिंग करें, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिंग करेंगे तो अबॉर्शन पर नौबत नहीं आएगी, अबॉर्शन और आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी की नौबत नहीं आएगी। तो बेस्ट है कि प्रिवेंशन विच इज़ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग में गायनेकोलॉजिस्ट से ज़्यादा आप लोगों का रोल है कि आप लोग एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं इसमें कि पेशेंट्स को जब भी आप अटेंड करें तो उनको काउंसिल करें, उनसे 2 मिनट बात करें कि बीवी तुम्हारे कितने बच्चे हैं, अब तुम बच्चे बंद करो। हमारे यहाँ कुछ सेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक जहन में है कि अगर बच्चे नहीं हुए तो शायद हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, या फिर मैं इनफर्टिलिटी में देखती हूँ कि एक आदमी है वो अपना सीमन नहीं करा रहा, वो कह रहा है मेरी बीवी को चेक करो। हमने कहा बीवी तो बिल्कुल ठीक है, तुम अपना सीमन कराओ, तो वो दूसरी शादी कर लेगा, तीसरी शादी कर लेगा।
اور وہ ایزوسپرمک ہوگا, اس کے سیمن میں سپرمز نہیں ہیں, لیکن جینڈر ایکوالٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا سیمن انالیسس کروائے. ان کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی پرابلم آپ میں ہے, آپ 6 شادیاں بھی کر لیں گے تو بچے نہیں ہوں گے. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے. تو بس بیسیکلی میرا یہی تھا. میں بہت شکریہ آپ لوگوں کا ادا کرتی ہوں فار یور پیشنٹ لسننگ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ تھی ڈاکٹر سونیا, جو انہوں نے بتایا جو ارلی چائلڈ میرج ہوتا ہے, مائنر چائلڈ میرج ہوتا ہے, ہمارے یہاں چھوٹی بچیوں کی شادی کرائی جاتی ہیں. یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے, اور اس کو ہمارے ڈاکٹر شیر شاہ ہیں, ہی از آلسو دا میل گائنیکولوجسٹ, جو اس ایشو کو بہت ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آبسٹیٹک ایک فسٹولا, آپ تو نرس ہیں شاید پڑھا ہوگا کہ کتنا فسٹولا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک جو چھوٹی بچیوں کی شادی کراتے ہیں ان میں, اور کتنا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ عورت کو بھگتنا پڑتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ اس کو 2 جگہ سے پیشاب کر رہی ہوتی ہے, سمیل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک عورت کے لیے بڑی ایک اور سوشل ایشو ہے. جو ایک دفعہ ڈاکٹر شیر شاہ نے بتایا کہ ایک خاتون کا 4 دفعہ یہ آپریشن ہوا تھا جو فیل گیا تھا, 5واں دفعہ ہم نے کیا. تو آپ سوچیں کہ وہ کتنی عذاب سے گزری ہوگی وہ عورت. تو یہ ہمارے جب تک ہم ان ایشوز کو, کیونکہ ہم ساری چیزیں خدا پہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے 30 لاکھ بچے ہیں آج مدرسوں میں پڑھتے ہیں. ان بچوں کا کیا ہوگا جب مدرسے کے باہر نکلیں؟ نہ وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ انجینئر بن سکتے ہیں, نہ وکیل بن سکتے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ گورنمنٹ چاہے تو ان کو ٹیچر دے سکتی ہے مدرسوں کے اندر, لیکن گورنمنٹ کے پاس ول پاور نہیں ہے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ تو ابھی تک ہزاروں اسکول ایسے ہیں جہاں واش روم نہیں ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بغیر واش روم کے بھی اسکول ہیں اس دور میں, 22ویں صدی میں ہم. تو یہ جو پلاننگ ہے, ہم ایران کو کیوں نہیں نقل کرتے؟ ایران از اے اسلامک کنٹری, انہوں نے کنٹرول کیا ہے پاپولیشن کو. بنگلہ دیش از اے اسلامک کنٹری, انہوں نے کنٹرول کیا ہے اپنی پاپولیشن کو. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ادیب رضوی ایک ہاسپیٹل کو بہترین ہاسپیٹل بنا سکتا ہے تو باقی ہاسپیٹل بہترین کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے, تو میرا کلیگ, میرا کلاس میٹ پوزیشن لے رہا ہے تو ہم بھی لیں. تو ہم اس میں کیوں نہیں نقل کرتے کہ ہم دوسروں سے آگے کیوں نہیں کراس کرتے؟ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہمیں تبدیل کرنا ہے اس معاشرے کو, اس نظام کو, اس بیماریوں کو. کل پرسوں مجھے بلایا تھا ایک ہندو کمیونٹی والے, دعائیہ تقریب کر رہے تھے, میں نہیں گیا. اپنا اپنا بلیف ہو سکتا ہے لوگوں کا, لیکن اس میں تو ہمیں خود کرنا ہے یہ کام. خدا نے تو ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا کہ دوسری تمام مخلوق سے ہم اعلیٰ ہیں. ہمارے پاس ذہن ہے, ہمارے پاس ذریعے ہیں, ہمارے پاس سورس ہے. تو میں سمجھتا ہوں ابھی میں بلاؤں گا بہت ہی ایک میرے لیے رسپیکٹڈ ہیں, میری بہن جیسی ہیں, میڈم مہتاب اکبر راجتی, جو میں نے لاسٹ ایئر بھی پروگرام کیا تھا تو ان کو بلایا تھا. اور وہ کئی اداروں سے وابستہ ہوتے ہوئے, سیاسی پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی سچ بولنے کی جرات رکھتی ہیں کہ جب تک ہم مسٹیک کو مسٹیک نہیں قبول کریں گے, ہم مطلب ہے کہ معاشرے کو درست بنا ہی نہیں سکتے. تو میں دعوت دوں گا, شی از دا ایکس ایجوکیشن سیکریٹری, IR پڑھاتی تھی, وہ کئی عہدوں پہ رہی, اور آج بھی پاکستان میں جو فیملی پلاننگ کے 2 بڑے جو نام ہیں پاکستان میں, ان کی چیئر پرسن وہ ہیں میڈم مہتاب اکبر. اس وقت جب کہ پورا ملک ہمارا ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہے,
आज हम यहाँ आप सब लोग अपने काम छोड़ के, अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, फरहान हैं और डॉक्टर सना हैं, आप सब लोग यहाँ आए हैं किसी मकसद के लिए। और वो मकसद ये है कि हम उन लोगों को समझाते हैं जिनको पहले से ये सारी बातें पता होती हैं। आपको पता है, डॉक्टर्स को पता है, जो यहाँ बात करने वाले हैं उन सबको द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज़ नोन टू एवरीबडी। और मैंने आते ही यहाँ कहा था कि ये औरतों के बजाय मर्दों को बुलाया करो, खुदा के वास्ते समझाना उनको है हमें। औरतों को सब पता है, औरत किस अजियत से गुजरती है वो उसको पता है, औरत किन किन चीज़ों से निपटती है वो उसको पता है। उनको क्या बताते हो आप जब डील कर रही होती होंगी अपने पेशेंट से, तो आपको उनकी दर्द की कहानियाँ आप सुनती होंगी कि वो क्या कहानी सुना रही है वो औरत। लेकिन वो 3 दिन का किस्सा होता है, आप किसी और औरत को फिर अटेंड करती हो, वो बेचारी अपनी दर्द की कहानियाँ लेके चली जाती है। लेकिन यहाँ जो डॉक्टर तुनियो साहब ने बातें की, बेसिक चीज़ें वही सुनने की हैं, समझने की हैं। सना ने जो आपको बताया मैं भी वो रिपीट नहीं करूँगी। 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी जो जड़ है आपके मसाइल की, और डॉक्टर तुनियो भी ने भी कहा, हम सब कहेंगे, वो ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वसाइल ही नहीं है, यानी अगर हम जाके 23 करोड़ की आबादी बनने वाले हैं, तो अभी तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो इस पर सोचना मैंने छोड़ दिया है कि वो 23 करोड़ को हम कैसे हैंडल करेंगे। अभी तो आप उनको हैंडल करें जो डिस्प्लेस हुए हैं लोग। मेरा ताल्लुक़ लाड़काना से है और मैं इस वक्त भी, मेरा दिल दिमाग जहन जो है वो उस तरफ है कि रात को एक छोटा सा गांव है उधर गाजी खुहावड़, वो रात को डूब गया है। उससे पहले कोई और डूब गया है, उससे पहले कुछ और डूब गया है। माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड वांट टू गो टू लाड़काना, वी कैन नॉट, क्योंकि इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों बंद हैं। और अगर आप कोशिश करें जाने की तो कंडियारों से आपको लाड़काना तक पहुंचने के लिए 14 घंटे लगेंगे, जबकि टोटल डिस्टेंस एंड टाइम इज़ कि हम जब कराची से निकलते हैं तो 6 घंटे में हम लाड़काना पहुंच जाते हैं इंडस हाईवे से। अब ये आपके हालात हैं। खैर को नाथन शाह डूब गया, मेहर डूबने वाला है, दादू आधा डूब चुका है। हम अपने तौर पर सब लोग राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन जिनके घर टूटे हैं, जिनके मकान बह गए हैं, कब तक वो अपने घरों में वापस जाएंगे और कहाँ वापस जाएंगे? खुले मैदान में? उनको घर कौन बना के देगा? कैन यू इमेजिन द क्वांटम ऑफ द इशू? किसी को अंदाज़ा है? हम सिर्फ क्लिप्स देखते हैं, सिराज दुरानी को धक्के दे के भगा दिया, मंजूर बसान कह रहा है कि दिस इज़ वेंस, जिसको वीनस नहीं कहना आ रहा है, वो वेंस देख कर आया है और कहता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मंजर। यार डूब मरो आप सब लोग। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ इवन विजिटिंग दीज प्लेसेस। अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है लोगों के बीच में जाने की, वो जूते लेके खड़े हैं। और वो कब होगा? क्योंकि जो हुक्मरान है वो अकाउंटेबल भी होता है। हज़रत उमर से भी किसी ने पूछा कि तुम तो इतने लंबे हो, तो तुमने इतना लंबा चौगा कैसे ले लिया है, तुम्हारे पास कहाँ से आया ये? खलीफा वक्त से पूछ रहा है एक आदमी खड़े होके, और खलीफा वक्त ने उसको डांटा नहीं। उसने कहा कि मेरे बेटे का जो हिस्सा था वो मुझे मिला, तो मैंने ये लंबा चौगा पहना है। और आज आपके हुक्मरान 10 गाड़ियों के काफिले में चलते टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। प्रोटेक्ट फ्रॉम होम? तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नर्सेज, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड अप्रिशिएटेबल जो हमारा शोबा है ख़वातीन का। और ख़वातीन का ये मर्दों को शुक्रगुजार होना चाहिए आपका। एक एक मर्द को आपके पैर धो के पीने चाहिए। आप उनकी बेटियों को बचाती हैं, आप उनकी बीवियों को बचाती हैं, आप उनकी माँओं को बचाती हैं। अगर आप लोग भी ना हो तो हम क्या करें? जहाँ डॉक्टर नहीं होती है वहाँ नर्स होती है। आपके हाथ में एक ज़िंदगी होती है,
ایک زندگی جو دوسری زندگی کو جنم دیتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیے آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ سب بکواس ہے. مذہب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ ان کو سمجھے گا، ان مولویوں کو بھی، اور جو بھی یہ کہتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نے قرآن پڑھا ہوگا تو اس میں کیا کھلا ہو کے قرآن بولے گا کہ فیملی پلاننگ کرو؟ ایسے ہوتا ہے کیا؟ باتیں ہوتی ہیں مثالوں سے، اشاروں سے، کنائیوں سے اس کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. تو جہاں پر یہ کہا گیا ہے قرآن میں کہ عورت لازمی اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ آپ کی آٹومیٹک فیملی پلاننگ ہو جاتی ہے، وہ وقفہ آ جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بچے کم پیدا ہوں گے. 2 سال کے بعد عورت بیچاری سانس لینے کے قابل تو ہو جائے گی کہ 2 سال تک وہ خود کو سنبھالے، بچے کو سنبھالے، اور اپنا دودھ دے رہی ہے. جو اب سب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ فارمولا دودھ نہ دو، اپنا دودھ دو اپنے بچوں کو، so that they should have energy. مجھے تو نہیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو سائنٹیفک ضروریات ہیں وہ کیا ہیں، آپ سب سمجھتے ہو. تو اور اسلام کیا کرے گا؟ اور کون سا یہ مولوی ہے جو کہتا ہے کہ یہ گناہ ہے؟ پکڑ کے لائیں اس کو اور پوچھیں کہ ثابت کرے کہ یہ گناہ ہے. اللہ رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کھانا نہیں دے سکتے ہو، اس کو کپڑے نہیں پہنا سکتے ہو، تو آپ کو اس کو پیدا کرنے کا حق نہیں ہے. 10 بچے پیدا کرو، اگر if you can afford to have 10 children دے دو، پیدا کرو. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں 15 بچے بھی، ان کے پاس 2 بچے ہیں، اور جو 1 بچے کو نہیں کھلا سکتا وہ 10 بچے پیدا کر رہا ہے. یہ اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ یہ ذمہ داری کون لے گا؟ اگر جنرل ایوب کے زمانے میں بچے 2 ہی اچھے کا سلوگن اتنا کامیاب گیا، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے؟ ان کو سب کو پتا تھا کہ unless we control the population، جہاں آپ کے ریسورسز ہی نہیں ہیں اور آپ کی پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، تو آج آپ کا پرائم منسٹر جا کے کہتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ میں مانگنے آیا ہوں، بٹ میری مجبوری ہے. شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں ہماری کہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. I hate watching TV anymore. ایک اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے پریس کانفرنس، دوسرا ختم کرتا ہے تو تیسرا اپنی جو سکراتی بکراتی ہمیں سناتا ہے. We are sick of that. We should reject all these things. We should tell them that enough is enough. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت ہوشیار ہو، ہمیں مت سناؤ. Don't use our resources and یہ چینلز جو ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے، یہ سارا جو ہمیں لیکچر دیتے ہو وہ ہمیں سب پتہ ہے. ہمیں سلیوشن بتاؤ. عمران خان خراب ہے، نواز شریف خراب ہے، شہباز شریف بیکار ہے، سب پتہ ہے. What is the solution? We are waiting to listen from you. اور کیوں حکومت نہیں کہتی کہ پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے؟ آپ بھول جائیے، سپریم کورٹ کے جج نے یہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہے. یہ چیز ڈسکس ہو سکتی ہے ٹی وی پہ، یہ ڈسکشن ہونے چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. ہمارے جو چینلز ہیں وہ بھی اپنی سوشل رسپانسبلٹی نہیں پوری کر رہے ہیں. کون سے آپ کے چینلز ہیں جہاں پر سوشل ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں؟ کہیں نہیں ہوتے ہیں. سارے پولیٹیکل بکواس چل رہی ہوتی ہے. آپ کے مارننگ شوز میں فیشن کی باتیں ہوں گی، جوتوں کی باتیں ہوں گی، کپڑوں کی باتیں ہوں گی. آپ جو آپ کے انٹرٹیننگ شوز ہیں اس میں بھائی مجھے موٹر سائیکل مل جائے، بھائی مجھے یہ دے دو، بھائی مجھے موبائل دے دو. یہ ہمارا کیریکٹر ہے. لوگوں کو انہوں نے مانگنے پہ آمادہ کر دیا ہے، مجبور کر دیا ہے. چینج یور سائیکالوجی، چینج یور مینٹالٹی پلیز. مجھے تو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اب جو بھی جاتا ہے چینل عورت کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ اپنا رونا رو رہی ہوتی ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، مکھے کچھ کو نہ ملو، اسا کے مانی نہ ملی. میرا دل چاہتا ہے میں ان کا جا کے میں گلا گھونٹ دوں جو ان کو یہ باتیں کہلواتے ہیں. ان کا پروگرام بنتا ہے، وہ ان کے منہ میں لفظ ڈالتے ہیں. عزت نفس کہاں چلی گئی ہماری؟
why a woman is crying. No, woman will stand in front of all these difficulties and she has been standing. उठाओ अपने आप को. और ये जो यहाँ डॉक्टर सना आपको बोल के गई है कि औरत जाके सास से पूछेगी, these are the realities. मैं फैमिली प्लानिंग को हेड कर रही हूँ और हमारी जो टीमें जाती हैं या डॉक्टर्स होती हैं और जब ये इस तरह की चीज़ें उनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उनको कहा जाता है कि आप वक्फा पैदा मियाँ से पूछ लो, मेरी सास मना करती, उसको मत बताइएगा. कुछ होती है वो कहती है जी कर दीजिए, आप कर दीजिए. सास को नहीं बताना है. सास औरत नहीं है, सास को एहसास नहीं है, वो खुद इस तकलीफ़ से नहीं गुजरी है. उनको बेटा चाहिए, 4 बेटियां क्यों आ गई? अरे शर्म करो, यही बेटी तुम्हारी बीमारी में यही खड़ी होगी, तुम्हारे पास बेटा नहीं होगा. वो कहेगा मेरी बीवी बीमार है, मैं उधर जा रहा हूँ. बेटी नहीं चाहिए. यही बेटियां हैं जो अपने घरों को पाल रही हैं. पूछिए आप अपने आप से, कितने घरों में सारी बच्चियां अपनी यंग एज में दे आर लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. हम सब एक दूसरे का दर्द जानते हैं और वो बहुत अच्छा कर रही हैं. किसी के ऊपर बोझ नहीं है. यू हैव टू स्टैंड ऑन योर फीट. और फैमिली प्लानिंग इज़ द की. आप नहीं करोगे, इसी तरह दर बदर हम फिरते जाएंगे. अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन हमें पहले ही डुबो देगी. हम अभी डूबे हुए हैं. 23 करोड़ जब तक हुए तो ये जो अभी डिस्प्लेस हुए हैं करोड़ों में, पहले हुकूमत उनका तो मदावा करे, पहले हुकूमत उनके लिए तो घर बनाए. ये 6 महीने भी इससे ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा लगना है कि ये लोग पहले तो अपनी वो जगह ढूंढे घर की. मेरा घर यहाँ होता था, पहले तो वो जगह ढूंढे और फिर किसी की तरफ देखे मदद के लिए. इस वक्त तो ये है कि 3 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है. 3 वक्त, 1 वक्त भी मिल जाए तो शुक्र करें. लोग जा रहे हैं, हम यहाँ से चीज़ें भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, चीज़ नहीं भेज सकते. इन काइंड वी कांट सेंड बिकॉज द ट्रैफिक इज़ बंद. लेकिन हम पैसे भेजते हैं कि भाई ये ले लो, जहाँ पक नहीं सकता है पका के दे दो, जहाँ पका सकते हैं वहाँ राशन दे दो. आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ क्या क़यामत है. लेकिन हम सब लोग अपने अपने तौर पे कर रहे हैं. यहाँ एक और चीज़ भी कही गई, बचपन की शादियाँ. तो वो उसके लिए व्हेन आई वाज इन द पार्लियामेंट, हमारे ही इनिशिएटिव से आई वाज लीडिंग द टीम और हमने बिल बना के पेश किया था. और सिर्फ सिंध असेंबली ने शादी की उम्र जो है लड़की और लड़के दोनों के लिए 18 साल कर दी है कि कम से कम उसको इतना तो सुकून हो कि वो जिस तरह से कहा जाता है कि वो जिस्मानी तौर पर बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं होती है वो बच्ची, तो बच्चा पैदा, वो खुद बच्ची होती है तो बच्चा पैदा हो जाता है. वो कैसे उसको संभाले, कैसे उसकी तरबियत करे, कोई सोचने वाला है खुदा का बंदा? तो दिस इज़ द ओनली प्रोविंस who has passed this bill and it is being implemented. जहाँ जहाँ हमने ये भी किया था कि जहाँ किसी को भी पता चले रिपोर्ट करे और बांधो उसको, बाप को भी, लड़के को भी, मौलवी को भी, डालो उसको जेल में, माँ बाप को भी जो ये फैसले करते हैं. तो ये अवेयरनेस अभी पूरी हुई नहीं है, हो रही है. लेकिन उसके अलावा जब हमने पंजाब में इसको लाने की कोशिश की तो सबने वहाँ पर बड़े इस्लामी लोग बैठे हुए हैं, डरते हैं. डरते क्या है? अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में. जो कुर्सियाँ कोई थूकता भी नहीं है इन पे, और जिस दिन उतरते हैं तो कोई देखता भी नहीं है उनकी तरफ. कुर्सी तो नहीं, कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है. जब काम नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? नहीं उतरेंगे, चिमटे रहेंगे. तो अभी टाइम आ गया है, एंड आई थिंक दिस इज द टाइम, बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर ऑल दिस इनजस्टिस व्हाट एवर इज हैपनिंग इन हियर इन दिस कंट्री. लोग अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. लेकिन there need to be a correct information passed on. There need to be education of women जिनको पता नहीं है. आप लोग ये काम करते करते, उनको अटेंड करते करते नर्सेज जो हैं उनके कान में ये बात डाल सकती हैं. जहाँ जहाँ आप उनको कन्विंस कर सकते हैं आप प्लीज़ कन्विंस कीजिए. जहाँ जहाँ आप उनको हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प कीजिए. जहाँ जहाँ डॉक्टर्स इस तरह की हमदर्द डॉक्टर्स हैं वो बात कर सकती हैं, उनको बात भी करनी है, काम भी करना है. तो
मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब की, शाबजा साहब की। ये हमेशा मुझे पकड़ लेते हैं लेकिन अच्छा करते हैं। मुझे मौका मिल जाता है आप लोगों से बात करने का, और इसलिए कि मैं आप तक पहुंच जाती हूं, आप 4 लोगों को और बताते हैं, 6 लोग और सुन लेते हैं। So he is doing a great job collecting people on very important subjects to speak. Education होती है, violence होती है, औरतों के साथ ज्यादती होती है। 2022 में आज भी औरत उतनी ही vulnerable है जितनी, उतनी ही क्या, हम बचपन में गलियों में खेलते रहते थे, हमें खौफ नहीं था। हम पड़ोसी अपने दोस्तों के साथ जाके केरिया चुराने चले जाते थे बागों में, दोपहर में, हमें डर नहीं होता था। आज हम अपनी छोटी सी बच्ची को, 5 साल की बच्ची को बाहर नहीं निकाल सकते, हमें डूब बनना चाहिए। Is this what you are preoccupied with sex? नामर्द कर दो इन सबको, पता चल जाए। ये जो कहते हैं ना कि इनकी सज़ा ये होनी चाहिए, नहीं कंट्रोल कर सकते तो तुमको क्या जीने का हक है। 5 साल की बच्ची, 6 महीने की बच्ची, मरी हुई औरत। खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। तुमको नहीं पता कि तुम लोगों के साथ, उनके घरों के साथ, उनकी औरतों के साथ क्या हशर होने वाला है, तुम्हारा खुद के साथ क्या हशर होने वाला है। तरबियत दो अपने लड़कों को। छोड़ दिया है तो सारा वक्त वो ये देखते रहते हैं स्टूपिड किस्म की वीडियोस, द होल नाइट। मेरा चौकीदार भी जागता है, मेरा काम करने वाले भी जागता है, मेरा कुक भी जागता है। कितने बजे सोते हो? 2 बजे सोता हूँ। क्या करते हो? कुछ नहीं, ये देखता हूँ। क्या देखते हैं उसमें? कोई क्या इस्लामी कोई लेक्चर सुनते हैं? बकवास देखते हैं, औरतें देखते हैं। वो इतनी खूबसूरत टिकटॉक बन रहा होता है। हेल विद इट। लड़कियों को भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि अपना हुस्न आप नहीं दिखाएंगे तो क़यामत नहीं आएगी। टिकटॉक पैसे मिलते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। कीप योर ग्रेस। बीइंग अ वुमन देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू। आप चलती कैसे हैं, बिहेव कैसे करती हैं, हैव कॉन्फिडेंस इन यू। और भूल जाइए कि आपको कौन क्या कहता है, उनको कोई हक नहीं है कहने का। लोग ये कहेंगे हम लोगों के लिए जी रहे हैं, नहीं जी, अपने लिए जियो। वो काम करो जो आप समझती हो सही है। तो दिस इज़ ऑल आई कैन टेल यू, आई कैन रिलेट विथ यू। आपको यही चीज़ें बता सकते हैं। और जो एंड है वो यही है कि अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो समझें कि आप अब इस वक्त तो पानी में डूबे हुए हैं, उसके बाद फिर आप डूबे ही डूबे हुए हैं। आपके रिसोर्सेज नहीं है, आपकी हुकूमतें बेकार हैं, वो अपने पेट भरेंगी, वो अपनी आसानियाँ देखेंगी। लेकिन मैंने जब ये कहा है कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, लोग जाग गए हैं और लोगों को पता है कि जो हुक्मरान आते हैं वोट मांगने के लिए उनके साथ क्या होना चाहिए। कि खुदा करे कि लोगों की गैरत उस वक्त तक जागती रहे। So thank you very much, Dr. Saab, and thank you very much, sir. Thank you very much, everyone. Thanks for listening to me. थैंक यू मैडम मेहताब अकबर राजदी, जिन्होंने बोला कि आप भूल जाएं कि कोई आपको क्या कहता है, क्या सोचता है। और वी आर फीलिंग इनसिक्योर इन दिस एज कि हमारी 5 साल बच्ची भी हम आप उसको बाहर नहीं भेजते। और वी फील प्राउड कि यहाँ सिंध में जो लॉ पास कराया चाइल्ड मैरिज लॉ का, उसमें मेहताब अकबर राजदी का हाथ था। और एक ये नुकसान भी हुआ, कुछ फ़ायदे भी हुए। जब 18वीं तरमीम 2010 में पास हुई तो पहले फैमिली प्लानिंग का डिपार्टमेंट मरकज़ के पास होता था, अभी सूबों के पास आ गया है। तो ये बदकिस्मती है कि सिंध में चाइल्ड मैरिज लॉ की एज 18 साल है और बाकी सूबों में 16 साल है। तो ये भी एक नुकसान है। और एक और भी नुकसान हुआ था जो हमारी कम्युनिटी को हुआ था, जो 18वीं तरमीम में ये लिखा गया था कि नॉन मुस्लिम यहाँ का वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बन सकता। कि जब जगह एक अयूब खान फौजी ने कार्निलियस को 8 साल के लिए चीफ जस्टिस बना दिया।
हाँ वो लेकिन ही वॉज नॉट चीफ जस्टिस, ही वॉज द जस्टिस. हाँ, राणा भगवान दास वॉज एक्टिंग, बट कार्निलियस वॉज द फुल टाइम फॉर 8 years चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. And yes, and Cornelius was also the first law secretary of Pakistan in the 1947. तो आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं इसमें हमें वोमेन एम्पावरमेंट नज़र आ रही है, जिसमें मैडम ने भी बोला कि वी कैन प्ले अ रोल, द वोमेन कैन प्ले अ रोल. और ये भी कहा जाता है, पता नहीं बीवी के लिए या माँ के लिए, कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे भी औरत का हाथ होता है. तो अभी मैं दावत दूंगा हमारी जो डॉक्टर ईसा लैब की एक जो हमारे लिए इंस्पायरेशन है और हमारी एक यंग लीडर हैं और एक रेडियोलॉजी और अल्ट्रासाउंड को बाय प्रोफेशन वो हेड करती हैं, और डॉक्टर फराही साहब को वो आएँ और पॉपुलेशन पे अपने ख्यालात कर जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मैंने कहा सब सो तो नहीं गए हैं अभी तक. बहुत बहुत शुक्रिया. एक तो बहुत अच्छा फील हो रहा है आज कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आके, और स्पेशली डॉक्टर टूनियो और खालदा साहिबा बिल्कुल, और मेहताब राशदी साहिबा, उनको मैं पहले से जानती हूँ. बहुत अच्छा लगा आज ऐसी फोरम पे मुलाकात हुई. डॉक्टर सोनिया मौजूद हैं. स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर जयपाल छाबरा जिन्होंने आज बहुत अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज़ करा हम लोगों के साथ मिलके. मैं क्योंकि लेक्चर लेती रहती हूँ यूथ के साथ, तो मुझे पता है कि लड़कियाँ जो हैं वो भी बोर हो जाती हैं, लेकिन इतनी इम्पॉर्टेंट इन लोगों ने बात जो की है आज, और आप लोगों को अवेयरनेस सेशन, क्योंकि आप लोग बहनें भी हैं ज़ाहिर, और फ्यूचर की माएँ भी हैं. यहाँ पे कितने लोगों के बच्चे, सब एक दूसरे को देख रहे हैं. किसी की भी शादी नहीं हुई, किस आगे वाला है, नहीं मैं स्टूडेंट से पूछ रही हूँ. अच्छा, किसी के भी नहीं हैं बच्चे हैं? हाथ उठाओ भाई. एक है. अच्छा चलो माशाल्लाह. तो बेसिकली फैमिली प्लानिंग के तुम लोगों के लेक्चर्स तो हुए होंगे ऑब्वियसली, है ना? लेकिन क्या बचपन से और जब माहवारी शुरू होती है तो किसी ने घर में बताया कि क्या किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, क्या क्या चीज़ें तुम लोगों को? नहीं, बहुत गर्दनें हिल रही हैं. नहीं, यस बताया नहीं? हाँ या ना? किसको कितने लोगों को पता था? अच्छा, जिन लोगों को पता था वो 3 लोग थे, बाकी किसी को भी नहीं पता था. द थिंग इज़, मेन चीज़ ये है कि जैसे डॉक्टर सोनिया मेहताब साहिबा ने बताया, डॉक्टर जयपाल, डॉक्टर टूनियो ने सारी चीज़ें बताई कि पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन हो रही है ना, और हमारे पास रहने के लिए जगह कम होती जा रही है, स्पेशली कराची और जैसी जगहों पे सिटीज़ में. इसके अलावा ये कि इस वक्त जो फ्लड्स की हालत है, अभी जो काउंट आई है 73,000 जो औरतें हैं वो जो फ्लड्स में फंसी हुई हैं, इस वक्त उनकी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है. ठीक है. और इसके अलावा जो है वो 6.5 लाख प्रेग्नेंट औरतें उस फ्लड्स में फंसी हुई हैं. अब ये गिनती किस तरह से मेहताब आंटी काउंट हुई होगी वल्लाह आलम, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने ये नंबर जारी किया है जो कि बहुत तशवीशनाक है ना. और तुम लोग सब नर्सेज बन रहे हो, और आई थिंक द फ्यूचर ऑफ नर्सिंग, एक तो पहली बात ये तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. तुम लोगों की दम से हर हॉस्पिटल चलता है, सो इम्पॉर्टेंट. और पूरी वर्ल्ड में इस वक्त नर्सेज की बहुत शॉर्टेज है, ये तुम लोगों को सबको पता होगी ना ये बात. बिल्कुल. तो तुम लोग अपनी नौइयत के फील्ड के हवाले से यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स, और तुम लोग अवेयरनेस जो फैला सकते हो वो एक बंदा या हम में से एक शख्स नहीं कर सकता. और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम लोग खुद सबसे पहले अवेयर हो, और अपनी फ्यूचर जब कल को तुम लोग की शादियाँ होती हैं तो तुम लोग को भी पता हो. अब जैसे मेहताब साहबा ने बताया कि हम लोग ने बचपन में, मैंने भी बचपन में बहुत सुना, 2 बच्चे ही अच्छे, चाबी की गोलियाँ लीजिए. अब इनको तो पता भी नहीं होगा चाबी की गोलियाँ क्या होती है. चाबी की गोलियों का पता?
है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ उन लोगों से, पता है चाबी की गोलियों का? हाथ उठाओ, किसको पता है? नहीं तो शर्माने की बात नहीं है। क्या क्या नहीं पता? नहीं पता? अच्छा, चाबी की गोलियां जो थी वो बर्थ कंट्रोल पिल्स थी ना, पिल्स थी। तो जब बचपन में हम लोग तो ऐसे ही कार्टून का इंतज़ार करते करते टीवी देखा करते थे, तो बीच में ऐड आ जाता था कि 2 बच्चे ही अच्छे, चाबी की गोलियां लीजिए। तो मेरे कितने बच्चे हैं? हाँ, 2 हैं। ब्रेन वॉशिंग। और 2 बच्चे भी बहुत महंगे हैं भाई, इतने पैसे खर्च होते हैं बच्चा रेज करने में कि दिवाला निकल जाता है। मतलब मैं रियली बता रही हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है कि मैं ये कहती हूँ कि मतलब मेरी वालदा के 5 बच्चे थे, और वो भी क्यों थे, 4 बेटों के बाद एक मेरा इंतज़ार हो रहा था। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है बेटियों और ये इस वजह से ज़ाहिर बेटियाँ होती हैं तो बेटा चाहिए होता है, उसमें 5 नंबर 10 नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा बेटी हो गए, लेकिन ये कि 2 बच्चे ही बहुत थे पालने के लिए। तो तुम लोग यंग मदर्स इंशाल्लाह बनोगे कल को, तो तुम लोग को उस वक्त तक, जब तक तुम लोग बनोगे तो बहुत महंगाई हो जाएगी। ये स्टार्ट जो है वो आप लोगों से ही होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल का, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, टुनियो साहब ने इतना इंपॉर्टेंट बताया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये हो रहा है, जितने ज़्यादा लोग होंगे इतना ज़्यादा गार्बेज होगा, उतना कम खाना मिलेगा, ज़ाहिर है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन भी अभी तो खैर बहुत ही अफेक्ट हुई हुई है। नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स पूरा में हमें साल लगेगा रिकवर करने के लिए। क्या ख्याल है मेहताबा आंटी, है ना? और क्रॉप सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, प्याज और टमाटर की कीमतें ऊपर चली गई हैं। तो इन सब को देखते हुए ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग का जो है ना इंफॉर्मेशन आप लोगों को हो, और आप लोग अपने पेशेंट्स को ये बताएं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इससे ज़्यादा कि डॉक्टर ईसा मरहूम कहा करते थे कि एक शख्स को बताओ बात तो 7 लोगों तक पहुंचती है। यानी कि अभी अगर कोई अपना सीक्रेट किसी को बताता है ना, बराबर वाली को, जिन्होंने आज काम किया है ये सुबह में, वो 7 लोगों को अब तक चला गया होगा व्हाट्सएप के थ्रू। पता है ये बात है? तो ये तो, लेकिन अच्छे वे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग अपने घरों में अपनी बहनों को, अपनी मदर्स को, अपने नेबर्स को, अपनी कज़न्स को, अपनी खालाओं को, उनकी बेटियों को जब एजुकेट करेंगे कि फैमिली प्लानिंग के लिहाज से पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ही आगे बात बनेगी। अपनी मेड्स को, अगर मेड्स हैं आप लोग के घर में, जो भी आपको फीमेल मिलती है, तो नर्सिंग का ये है कि आप ना सिर्फ फैमिली प्लानिंग को, बल्कि वुमेन डिजीज़ेस जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है या ओवेरियन कैंसर होता है, डिफरेंट तरह की जो औरतों की बीमारियाँ जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते ना, हम नहीं बात करना चाहते खुल के ब्रेस्ट के बारे में। करना चाहते? कोई करता है हमसे? नहीं करता ना। तो तुम लोग तो हेल्थ वर्कर्स हो, तुम लोग को ये सब चीज़ें करनी है और आगे बात पहुँचानी है। आखिर जाते जाते मैं बताती चलूँ कि डॉक्टर ईसा का प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत मैंने लेक्चर्स दिए हैं डिफरेंट विमेन टॉपिक्स पे, और एम्पावरमेंट के लिहाज से हम लोग बहुत काम करते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, इसके अलावा के ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। और ये कि सब बहुत अच्छा मुझे लगा आज हम के नर्सिंग कॉलेज में हम लोग आए और हम लोग को मधु किया गया, और आई होप कि तुम लोगों ने थोड़ा सा इन्जॉय किया होगा आज का लेक्चर। और जाते जाते 2 लाइनें डॉक्टर सोनिया के लिए स्पेशली। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने, उसमें शामिल है आवाज़ मेरी। उड़ के पहुँचोगे तुम जिस फलक पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। चांद
बहुत शुक्रिया। एक पहुंच गई और इन्होंने अच्छा है अपना एक, क्योंकि इनकी काफ़ी इनका सिंगिंग के साथ शौक़ है और इनका सीडी भी रिलीज़ हो चुकी है। और मैं तो डॉक्टर को वैसे नॉन सोशल एनिमल बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग रात को 11-12 बजे तक ओपीडी कर रहे होते हैं, जब शाम को सारे लोग कमा के घर आते हैं और हम लोग तब कमाने शुरू हो जाते हैं कि तो ये, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो अपना टाइम निकालते हैं। और लेकिन मैं समझूंगा कि एक तो शुक्रिया अदा करूंगा मैं दोबारा मैडम खालदा का, कि जब मैं मिलने आया तो मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम जो मैंने किया था वो मैडम साहिदा थी, तो मैं बगैर सोचे समझे यहाँ आ गया था कि मैं जाऊँगा। और मेरे में एक पता नहीं, हर बंदे को पता भी होता है कि मैं काम ये कर लूँगा, तो मेरे में एक होता है कि मैं जहाँ जाऊँगा तो आई विल गेट द परमिशन। तो मैं आया और इसी तरह का वाक़या एक दफ़ा मैं सेंट पैट्रिक में गया था कॉलेज में, एक वहाँ की जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर थी, 2 दिन पड़े थे मुझे दिवाली का फंक्शन करना था, और उन्होंने बगैर जानते हुए एक्सेप्ट किया था कि डॉक्टर जयपाल वी विल डू, और सारा खर्चा सेंट पैट्रिक कॉलेज ने उठाया था, डेकोरेशन का, आइडियंस भी उनका, केक भी उनका, एवरीथिंग। ऑन द चीफ गेस्ट वाज माय CEO डॉक्टर फरहान ईसा, वहाँ चीफ गेस्ट थे। लेकिन वो भी हमारे इदारे में वो किसी की रखते नहीं है, तो उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपका ख़र्चा कितना हुआ है, तो उन्होंने एक चेक दे दिया उनको कि आप ये रखें, और आपके, और बल्कि उनको ऑफ़र दे दी कि कभी आप एक अपने स्टूडेंट्स को कोई एजुकेशनल टूर कराएं तो उसमें भी डॉक्टर ईसा लैब आपकी हेल्प करेगी, या कोई डिबेटिंग प्रोग्राम करें। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर ईसा लैब न सिर्फ लेबॉर्ट्री है, बल्कि हम लोग तमाम सोशल एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करते हैं, तमाम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, तमाम इदारों को हम डिस्काउंट देते हैं, MOU करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के साथ। अभी हमने 14 अगस्त इंडस यूनिवर्सिटी के साथ सेलिब्रेट किया था, तो हम फ्यूचर में भी यहाँ करते रहेंगे। और जैसे डॉक्टर सोनिया ने बताया था कि हमारी डॉक्टर कमर्शियल हो गए हैं, वो टाइम नहीं देती, तो एक छोटी सी बात बताऊँ, हर गायनोकोलॉजिस्ट की ड्यूटी होती है कि जब वोमन पेशेंट उसके पास आती है तो वो ब्रेस्ट की कंप्लेंट करिए बगैर उसको ब्रेस्ट को चेक करना होता है या हिस्ट्री लेनी होती है। लेकिन ये लेने की नई वजह से यहाँ ब्रेस्ट कैंसर बहुत हमारे मुल्क में बढ़ रहा है, जो लेट हो जाता है और लेट डायग्नोज होता है, जिससे औरतों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो हम नेक्स्ट टाइम एक दोबारा आपके पास आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अभी मैं डॉक्टर फराह ईसा को बुलाऊंगा कि वो हमारे छोटा सा एक गिफ्ट है जिसमें हम मग वगैरह देते हैं कि जब आप हमारे स्पीकर सुबह की चाय या काफ़ी पिएँ तो हमारे ईसा लैब की याद ज़रूर उनको आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले मैं डॉक्टर तोनियो साहब को दूंगा, जो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और एक ऐसे इदारे में काम करते हैं जहाँ लाखों लोगों की डेली बेसिस पे हेल्प होती है, जिना हॉस्पिटल। और मैं समझता हूँ कि वो फ्यूचर में रोल प्ले करेंगे कि जिना हॉस्पिटल और भी बेहतर हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत मिले। तो हमारे ईसा लैब की तरफ से उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, और ये फराह अकेडमी की तरफ से भी एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू। अब मैं अपनी बहन मेहताब अकबर राजती साहिबा को दावत दूंगा कि वो आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खुशी हो रही है कि आज मैडम मेहताब अकबर राजती हमारे साथ हैं। डॉक्टर सोनिया को, जो एक PMA कराची की प्रेसिडेंट भी हैं, शी इज़ गायनेकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर सर सैयद हॉस्पिटल में। मैं बात कहना चाह रही थी जी, आज के डॉक्टर ईसा के प्लेटफॉर्म पे हैं हम, तो डॉक्टर ईसा से मेरी मुलाकात हुई CPSP में, मैं कोई पता नहीं कोर्स कर रही थी क्या, बाकी मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन यूके की है, तो इसका CPSP से वास्ता नहीं है। तो उनके वो लेक्चर से मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, और वो उनका ना सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा था। और वक्त कहाँ गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो
कि वो इतनी एज हो गई होगी कि ही पास्ट अवे, क्योंकि कब्रिस्तान जाती हूँ फेज़ 1 के तो पहले डॉक्टर ईसा की आती है खबर और फिर मेरे अब्बा की आती है, तो वहीं से गुजरती हूँ। तो कहने लगे कि मैंने शादी से पहले अपनी मूछें साफ़ करवा दी। सब कह रहे हैं भाई इन्होंने मुझे क्यों साफ़ करवा दी, कहने लगे इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई फासला हो। गुड मेमोरीज। I found him so witty, he was such a nice man and he was, उस वक्त इनकी एक लैब होती थी वो फ्लोरेंस पता नहीं कुछ फ्लोरेंस नॉर्थ नाज़िमाबाद में, मैं सबको कहती थी हाँ ईसा लैब वाले जेन्युइन करते हैं। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी मेहनत और उनके बच्चों की, एंड आई रियली वांट टू विश बेस्ट ऑफ लक टू ईसा लैब कि वो और तरक्की करें। बेस्ट ऑफ लक। ये थी डॉक्टर सोनिया, जो अभी मैं दावत दूंगा जो सबसे जी मैडम खातून, अभी मैं बुलाऊंगा इस जो कॉलेज की प्रिंसिपल हैं मैडम खालदा को, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको डॉक्टर ये छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट है मैडम, थैंक यू। अभी मैं Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.